Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? Mashallah, you are in grade 5 and today is your first English period. We will start reading with your textbook, that is Oxford Broadway 5. You should cover this book, bete, with the plastic sheet and write your name on the top of the book so that it could be safe. Open page number 11. What's the topic? Gulliver and Lilliput. So students, this is a part of a very famous novel, Gulliver's Travels. So it is very interesting story. Now you see the picture at page number 12. This is very interesting picture. A man is there and he is tied with the strings of ropes and some very tiny creatures are on him. Can you see? A man is lying and he is tied with the ropes and very tiny people. कितने छोटे छोटे लोग हैं ना जो इन पे चढ़े हुए हैं. अब देखते हैं, पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है, क्या हो गया था. So start reading, but before that read the dua. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. So better take your pencil and start reading with me. Jonathan Swift's famous novel Gulliver's Travels described the adventures of its hero Gulliver. On a voyage to the South Sea Islands in the Pacific Ocean, Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. He is lucky to swim to safety. When he reaches dry land, he is so hungry and tired that he falls asleep at once. He does not know it then, but he has landed in Lilliput. क्या बता रहे हैं इसमें कि जो नॉवेल है गॉलिवर्स ट्रेवल्स, उसका हीरो गॉलिवर के एडवेंचर्स बताए हैं. साउथ सी आइलैंड पैसिफिक ओशन में वो सफ़र कर रहा था कि वहाँ पर उसकी शिप रॉक से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन वो लकी था कि वो सेफ़ रहा और वो एक ड्राई लैंड में पहुँच गया. वो बहुत ज़्यादा हंग्री भी था, टायर्ड भी था, तो वो फ़ौरन ही सो गया. उसको नहीं पता लेकिन वो कहाँ पहुँच गया था, लिलिपुट में. Gulliver continues his story. I slept very well for several hours. When I woke up, I tried to get onto my feet, but I could not move. My arms and legs and my long, thick hair were tied to the ground. I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. The only part of my body that I could move was my eyes. क्या बता रहा है वो कि वो घंटों के लिए सो गया था और जब वो जागा और उसने चाहा कि अपना पाँव मूव करे तो वो नहीं कर सका. उसके आर्म्स, उसकी लेग, उसके लॉन्ग थिक हेयर सब टाइट हो गए थे ग्राउंड के साथ और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी नेक से लेकर नीचे तक बंधी हुई थी. अब आप ये पिक्चर देखें, इसकी बॉडी पूरी बंधी हुई है, इवन उसके बाल तक बांधे हुए हैं और ज़मीन के साथ, और वो सिर्फ क्या मूव कर सकता था, उसकी आइज़. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. I could hear a lot of noise about me. Many things were moving about, but I could not see them. After a while, I felt something on my left leg. It was alive and it moved gently over my body towards my chin. वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शोर सुन रहा था अपने आसपास, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही थी लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता था. थोड़ी देर के बाद मुझे अपनी लेफ़्ट लेग पर कोई चीज़ फील हुई. वो जो कुछ भी था वो ज़िंदा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ता हुआ मेरी चिन तक आ रहा था. सडनली आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी अ वेरी वेरी स्मॉल मैन. ही वॉज ओनली अबाउट 6 inches tall. He held a bow and arrow. Then I felt about 40 more little people climbing over me. अचानक ही मैंने देखा कि मेरे सामने मेरी बॉडी पर चढ़ते हुए एक छोटा, बहुत छोटा आदमी आ रहा है और उसकी टोटल हाइट क्या थी, 6 inches. जितना आपका स्केल होता है ना, बस इतना छोटा सा वो आदमी था और उसके पास बो और एरो भी था. फिर उसको फील हुआ कि और भी 40 और लोग उसके ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं.
I could not believe it. I was so surprised that I shouted very loudly, and all the little people ran away in fright. Many jumped to the ground and some were badly hurt when they fell off my body. वो कह रहा है कि मैं बिलीव नहीं कर सका. क्या बिलीव नहीं कर सकता कि कोई इतना छोटा आदमी भी हो सकता है आपके रूलर के बराबर. तो मैं इतना सरप्राइज हुआ कि मैं बहुत ज़ोर से चीखा और मेरे चीखने की आवाज़ से वो लोग डर गए. बहुत सारे लोगों ने ग्राउंड पे जंप मार ली और कुछ को बहुत ज़्यादा चोट भी लगी. बट दे रिटर्न सून, लेकिन वो जल्दी वापस आ गए. वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज. उनमें से एक मेरे बहुत करीब आया और बहुत ज़्यादा क्लियर वॉइस में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगा, लेकिन मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई. लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल. जब वो वहाँ लेटा हुआ है तो कह रहा है मुझे वहाँ लेटना मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था. आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बीन टाइड टू स्टेक्स इन द ग्राउंड. वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर अनकम्फर्टेबल था और मैंने कोशिश भी की कि मैं अपने आप को निकाल सकूँ. स्टेक्स क्या है? स्टेक्स से मीनिंग है, जब पता है ना हमें कि जब नंबर 1 यहाँ पे डाला होता है तो यहाँ उसके मीनिंग दिए हुए होते हैं. स्टेक्स पीसेस ऑफ वुड सेट इन द ग्राउंड फॉर सपोर्ट. ये जो पीसेस ऑफ वुड लगाए हुए हैं ज़मीन के साथ, इनको कह रहे हैं स्टेक्स. ठीक है. आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड. वो कह रहा है कि मैंने अपना लेफ्ट आर्म तो फ्री करवा लिया और फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे सर का लेफ्ट साइड भी फ्री हो जाए. It was very painful, but I succeeded in loosening some more sticks. वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन बहरहाल वो कुछ स्टिक्स को तोड़ने में, लूज़ करने में कामयाब हो गया. Now I was able to turn my head about 2 inches. और अब वो अपने सर को 2 इंचेस के करीब घुमा सकता था. ओके, सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी. इसमें गॉलिवर होता है और वो सी वॉयज के बाद जब उसकी शिप रॉक से टकरा जाती है तो वो एक ड्राई लैंड में पहुंच जाता है और वहाँ जाकर वो सो जाता है क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री एंड वेरी टायर्ड. जब वो उठता है और अपना पाँव उठाना चाहता है तो उसको फील होता है कि मुझे तो सब बांधा हुआ है. फिर वो बहुत छोटे छोटे से लोग देखता है जो कि 6 इंचेस के बराबर होते हैं और उन लोगों ने इसको बांधा हुआ होता है. फिर ये कोशिश करके अपना लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट हेड का साइड खुलवा देता है. अब उसके बाद क्या होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. इन द मीन वाइल यू अगेन रीड दिस चैप्टर. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.